Assalamualaikum dear viewers. Hope you all are fine. Once again, I Mahpara Mushtaq of Needhamfield School is here to discuss the second part of our chapter Computer Software from class ninth Computer Science. In our previous lecture, we learned about software, system software, two of the types of system software like operating system and language processor. Today, we will discuss about device driver, utility software and application software. So, device driver. Dear students, it's a computer software that operates or controls a particular type of hardware device attached to a computer. It is designed to enable interaction with hardware devices. Without this, the corresponding hard device will fail to work. डियर स्टूडेंट्स, ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को. एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस या हार्डवेयर डिवाइस जो भी अटैच हो आपके कंप्यूटर से, उसको ऑपरेट करता है, उसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है. सॉरी. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग प्रिंटर. आपको प्रिंटर यूज़ करना है. You should install first the printer driver on your computer. Without printer driver, your printer will not work, will fail to work. सेम थिंग, अगर आपको सीडी चलानी है आपकी कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके पास ड्राइवर होना चाहिए सीडी को रन करने के लिए. अगर आपके पास ड्राइवर नहीं होगा, दैट सीडी विल फेल टू वर्क. दैट मीन्स these drivers, these device drivers are the executors of hardware devices. These are the executors of hardware devices. The last type of system software is utility software. Utility software is a software which is designed to help to analyze, configure, optimize or maintain a computer. It keeps the computer systems running smoothly. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, ये हमारे कंप्यूटर को मदद देता है कि वो काम अपना आसानी से करें. ये मेंटेन करता है कंप्यूटर को. कैसे मेंटेन करता है, ये आपको इन टाइप से पता चल जाएगा. सो वी हैव 4 and many types of utility software. The main utility software is backup utility, compression utility, disk defragmenter, antivirus software, and we have various other utility softwares. The first is backup utility. So बैकअप यूटिलिटी जो होता है, इट क्रिएट्स अ बैकअप ऑफ डेटा फाइल. ये बैकअप क्रिएट करता है डेटा फाइल का. बैकअप कैसे क्रिएट करता है? से फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आए, कोई क्रैश आए, आपका डेटा लॉस्ट हो, तो व्हेन यू हैव दिस बैकअप यूटिलिटी, यू कैन रिट्रीव योर डेटा फ्रॉम दिस बैकअप यूटिलिटी. इट स्टोर्स योर डेटा एंड यू कैन रिट्रीव दैट डेटा फ्रॉम दिस बैकअप यूटिलिटी. The next is compression utility. Compression utility वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्रेस करता है. It compresses data so that it takes less space. It takes less space. Why is it done? Because it's particularly useful when data has to be transmitted over a network, so that data transfer takes less time. लेस टाइम डेटा ट्रांसफ़र. अगर आपको किसी दूसरे बंदे को कुछ डेटा सेंड करना है, कुछ फाइल सेंड करनी है, तो व्हेन यू यूज़ दिस कंप्रेशन यूटिलिटी, ये आपके डेटा को, आपकी फ़ाइल को कंप्रेस करता है. जब कंप्रेस करता है तो दूसरे बंदे के पास वो फाइल जल्दी पहुंच सकती है. और कंप्रेशन यूटिलिटी हमें मदद देता है कि ये हमारे जो फाइल्स को कंप्रेस करके रखता है हमारे कंप्यूटर में, उससे हमारी मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती है. ये फाइल्स को कंप्रेस करके रखती है. The third is disk defragmenter. Disk defragmenter utility जो होता है, it defragments the files. Defragmentation means putting files on the disk so that the whole file is in sequence. This utility software reduces the time to access the file. And the fourth is antivirus software. What does antivirus software do? It recognizes a virus pattern on your computer. अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस होगा, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है, अलर्ट करता है यूज़र को, एंड देन इट रिमूव्स दैट वायरस. ये फिर उस वायरस को रिमूव करता है. The next type of now we will discuss the next type of software, that is application software. So application software, it is a computer software designed to accomplish some task on computer.
It is a computer program or a group of programs designed to perform a group of coordinated functions, tasks or activities for the benefit of the user. ये वो सॉफ्टवेयर है जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो, कंप्यूटर के पे जो भी काम आप करते हो, चाहे आपको ये रिपोर्ट लिखना हो, चाहे आपको फोटोशॉप यूज़ करना हो, चाहे आपको कैमरा यूज़ करना हो, चाहे आप जो भी ब्राउज करते हो कंप्यूटर पे, वो सारा कौन देख लेता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेता है. इट यूजेस द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस बियॉन्ड द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम. ये जो है ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस हमें ये करता है, ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है बियॉन्ड द बेसिक फंक्शंस. लाइक आपको वर्ड यूज़ करना हो, आपको एक्सेल यूज़ करना है, जो भी एप्लीकेशंस, जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, वो किसकी वजह से आप करते हो? विद बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट परफॉर्म्स यूजर्स जॉब. यूज़र का जॉब जो होता है, हमारा जो जॉब है, वो कौन परफॉर्म करता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही परफॉर्म करता है. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software is broadly classified into general purpose software, specific purpose software, and customized software. The first is general purpose software. General purpose software are the softwares that perform various important tasks on computer. ये जो होता है general purpose software, ये बहुत सारे important tasks जो कंप्यूटर पे है वो ये काम करता है. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होता है, इट्स यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क्स. It's used for variety of tasks. It's not limited to one particular function. It's not limited to one particular task, but it helps in doing variety of tasks. It's mostly used in home, in schools. So with the help of general purpose software, you can do any of the job on your computer. Like you can do word, you can perform word processing, text editing, you can manage database, etc. There are various types of general purpose software. Like we have word processing program. We have word processing program, a spreadsheet program, database program, graphics, multimedia and presentation program, desktop publishing software, personal information manager, browsers. Word processing program. Word processing program is a software that is used to create an organized and perfect textual documents. आपको जो भी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करनी होगी, आपको जो भी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करनी होगी, वो किसके थ्रू होता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के थ्रू होता है. ये जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, इट एनेबल्स अस टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट. इसके थ्रू आप डेटा को एंटर भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यू कैन राइट बिजनेस लेटर्स, यू कैन राइट न्यूज़ लेटर्स, यू कैन राइट एग्जाम पेपर्स. आपके जो एग्जाम पेपर्स होते हैं वो किस में टाइप होते हैं? वो इसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में टाइप होते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में. इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हम बिजनेस लेटर्स लिख सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स लिख सकते हैं, एग्जाम पेपर्स एक्स्ट्रा लिखते हैं. The second is spreadsheet program. Spreadsheet program जो है, ये सॉफ्टवेयर है that accepts and arranges data in a grid format. या आप बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म में. टेबल फॉर्म में जिस भी सॉफ्टवेयर में आप डेटा ये करते हो, आप डेटा एंटर करते हो, वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. इसमें हम डेटा एंटर करते हैं इन ए टेबुलर फॉर्म एंड इट enables a user to insert, update, calculate, analyze data. इसमें भी हम अपडेट कर सकते हैं, इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटा, लेकिन इन ए टेबुलर फॉर्म. द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. द थर्ड इज डेटाबेस प्रोग्राम. डेटाबेस प्रोग्राम जो है, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज अ डेटाबेस. डेटाबेस इज द लॉजिकल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. एक कलेक्शन होता है लेकिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन का. दिस प्रोग्राम अलाउज अस टू स्टोर, सॉर्ट एंड रिट्रीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इसके थ्रू हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को. इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. लाइक यू कैन सेव टेलीफोन नंबर्स, you can save emails of your friends in database program. The example of database program is MS Access या
and Oracle. The rest of the types we will discuss in our third lecture. Thank you, stay safe, and have a good day.